आज हम लोग बात करेंगे फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, यानी अर्ली ह्यूमन के बारे में बात करेंगे, नोमैड से सेटलर्स तक. सो हु वर हंटर्स एंड गैदरर्स? वी डिस्क्राइब पीपल who lived in subcontinent 2 million years ago as hunter and gatherers. This name was been provided because they hunted a wild animal and caught fish, birds, and gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks, eggs for their food. तो ऑफकोर्स हंटर्स जो होते थे वो सब कॉन्टिनेंट एरिया में रहते थे और वो हंट करते थे एंड गैदर करते थे फूड, फ्रूट्स, एनिमल्स, ये सबको. Or hunter and gatherers move from one place to another place because of the following reason. If they had stayed in one place for a long time, they would have eaten up all the available plants and animal resources. Animals move from one place to another as place to place. So these people had to follow their movement for their hunting purpose. And people may have moved from a season to season in search for different kinds of plant. People living on the bank would have had go to in search of water during the dry season from their places. Early humans were nomads, so they used to move from one place to another and they did not farm. जैसे कि फूड की तलाश में, फ्रूट्स के तलाश में, हंट करने के लिए एनिमल्स को, तो फूड उनका क्या होता था? They hunt animal, caught fish, gather fruits, nuts, roots, seeds. And why they move? They move in search for food from one place to another. Fish kept moving, so hunters also move. Fruits and plants came in different seasons. They needed water every day. So tools and fires. वही hunter gatherers का tools fires हो गया, like made of stones, wood, bones. Stone tool were used to cut a meat, chop fruits and dig roots. यानी स्टोन टूल्स, वुड, बोन, ये सब के ज़रिए ये सब टूल्स मारा जाता था जिसके ज़रिए मीट, फ्रूट्स को कट किया जाता था. और फायर जो होता था इसके ज़रिए कुक किया जाता था रॉ फूड को. सो इट वॉज डिस्कवर्ड बाई एक्सीडेंट के ज़रिए डिस्कवर हो गया था. इट गिव लाइट, kept them warm in winter, cooked food and scare animals. इसको वार्म यानी विंटर के समय वार्म के लिए यूज़ किया जाता था और फूड को कुक करने के लिए भी यूज़ किया जाता था और वाइल्ड एनिमल्स को स्केयर करने के लिए भी यूज़ किया जाता था. So how do we know about them? Archaeologists found these stones, tools, bones and rock paintings. Paintings were found in caves of MP and South UP. So they show hunting, grinding, dancing and ancient made up of a drainage system के ज़रिए. हाँ, जो आर्कोलॉजिस्ट को मिला उनका एविडेंस, हंटिंग, ग्राइंडिंग, डांसिंग, ये सब का जो मेटेरियलिस्टिक एविडेंस या फिर ड्रेनेज सिस्टम के ज़रिए वो जाने कि जो अर्ली नोमैड्स होते थे वो क्या चीज़ यूज़ करते थे, किस तरह से यूज़ करते थे. और पेंटिंग्स ये सब के ज़रिए भी जाने, काफ़ी चीज़ स्क्रिप्चर्स के ज़रिए जाने, लिखा हुआ टेक्स्ट. So choosing a place to live. Early people lived near water sources. They also lived near place where stones were found to make tools. These were known as factory sites, and a place with a tools house were known as a habitation कम फैक्ट्री साइट. यानी वो जगह जहाँ पे वाटर रिसोर्सेज पाया जाता था उसको ऑफकोर्स वाटर सोर्सेज के नाम से जाना जाता था, और वो जगह जहाँ पे स्टोन्स पाया जाता था near a place near where stones were found to make tools that were known as factory site. उसको factory site के नाम से जाना जाता था. And place with a tools house were known as habitation कम factory site. और वो place जहाँ पर tools house ये सब पाया जाता था उसको जाना जाता था habitation कम factory site के नाम से. So the big changes, climate and farming. यानी बिग चेंजेस क्लाइमेट फार्मिंग के बारे में जानते हैं. एज अबाउट 12,000 ईयर्स अगो द अर्थ बिकेम वार्मर एंड द ग्रासलैंड ग्रू एंड एनिमल इंक्रीज्ड.
People started watching plants grow. They were watered them and protected them from the birds. This is how farming started. फार्मिंग कैसे शुरू हुआ था? जैसे कि 12,000 साल पहले अर्थ का जो टेम्परेचर होता था वो वार्म रहता था और ग्रीनलैंड ग्रो वहाँ बहुत ज़्यादा ही ग्रीनरी एरिया भी रहता था। एनिमल्स भी बहुत बड़े रहते थे। तो पीपल जो रहते थे वो देखे कि प्लांट ग्रो कर रहा है, सो दे वाटर देम एंड प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम बर्ड्स, और वो उसको बर्ड से बचा के रखते थे। सो दिस इज़ हाउ फार्मिंग स्टार्टेड, यानी उसको वाटर देते थे, बर्ड से बचा के रखते थे। तो इसी तरह से फार्मिंग शुरू हुआ। ये भी एक्सीडेंट ही के ज़रिए, फायर भी बाय एक्सीडेंट, ये भी बाय एक्सीडेंट। So domestication, taming plants and animals. Domestication means growing useful plant and taming animals. So first animal tame was dog. सबसे पहला animal जो tame हुआ था डॉग था। Other animals tame like sheep, goat, cow, pig, horse, which gave milk, meat, help in carrying load, जो कि देता था मिल्क, मीट कैरी करने के लिए, लोड ये सब भी मदद करता था। सो फर्स्ट क्रॉप जो उगा था, सबसे पहला क्रॉप वो था वीट बार्ले वॉज द फर्स्ट क्रॉप एंड पीपल चूज हेल्दी प्लांट्स एंड जेंटल एनिमल्स। सो डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है ग्रोइंग यूजफुल प्लांट्स एंड टेमिंग एनिमल्स, यानी एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना, पालना, के एनिमल्स को और प्लांट्स को ग्रो करना। सबसे पहला टेम्ड एनिमल था डॉग और बाकी टेम्ड एनिमल था उसके बाद शिप, गोट, काउ, पिग, हॉर्स, और ये सब मिल्क, मीट देता है, कैरी करता है हैवी लोड्स। सो फर्स्ट क्रॉप वॉज वीट बार्ले एंड द पीपल चूज हेल्दी प्लांट्स एंड जेंटल एनिमल्स। So, domestication is the process in which people grow plants and look after animals. जो domestication एक तरह का process है जिसमें आप people grow करते हैं plants और animal को look after करते हैं, देखते हैं। So, domesticated animal such as a dog, sheep, goat, cattle, pig, विच आर यूज्ड फॉर मिल्क, मीट एंड लेबर, जिसको मिल्क, मीट, लेबर के लिए यूज़ किया जाता है। जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल होता है जैसे कि डॉग, शीप, गोट, कैटल, पिग, इसको हम लोग मीट, मिल्क, लेबर के लिए यूज़ करते हैं। और डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल, वो प्रोसेस जिसके ज़रिए लोग ग्रो करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को का देख रेख करते हैं। और इसके एनिमल्स हो गए डॉग, शिप, गोट, कैटल, पिग, ये सब जो कि मिल्क, मीट, लेबर के लिए काम करता है। और डोमेस्टिकेटेड प्लांट हो गया वीट, बार्ले, और उसके बाद आया राइस, मिलेट, ये सब भी। सो अर्लीस्ट एविडेंस, सबसे पहला एविडेंस पाया गया था मेरघर में पाया गया था, और जो कि आज जाना जाता है ये पाकिस्तान के नाम से। मेरघर में ये सबका सबसे पहला एविडेंस पाया गया था। सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स वर ऑफन स्मॉलर दैन वाइल्ड एनिमल्स एंड लिव्ड क्लोज टू ह्यूमन्स। A new settled life. Because of farming, people had to stay in one place and they built permanent homes and made clay pots, basket, pits to store grain. New tools, polished stone tools, mortars, pestles for grinding grain. They also started weaving clothes like cotton. यानी जो न्यू सेटल लाइफ है जहाँ वो लोग जहाँ नए एरियाज़ में सेटल करते थे, जैसे कि बिकॉज ऑफ फार्मिंग पीपल हैड टू स्टे इन वन प्लेस एंड दे बिल्ट परमानेंट होम्स, यानी फार्मिंग की वजह से लोगों को एक ही जगह पे बैठना होता था, स्टे करना होता था, और वो बिल्ड करते थे इसलिए अपना परमानेंट हाउस बनाते थे। क्ले पॉट, बास्केट, पिट्स टू स्टोर ग्रेन्स एंड वाटर एंड न्यू टूल्स, पॉलिश्ड स्टोन टूल्स का भी इस्तेमाल करते थे। मोटर, पेस्टल फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए, पीसने के लिए। दे ऑल्सो स्टार्टेड वीविंग क्लोथ्स लाइक कॉटन, ये सब का भी इस्तेमाल करना शुरू किए थे। यानी कॉटन
जैसे वीविंग क्लोथ्स को भी यूज़ करना शुरू किए थे, तो ये उनका परमानेंट सेटलमेंट हो गया फार्मिंग के, जस्ट बिकॉज ऑफ फार्मिंग। ओके, सो डिफरेंट स्टोन एजेस। तो मेनली चार टाइप ऑफ स्टोन एज है: पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज एंड कैलियो कैल्कोलिथिक एज, चैकोलिथिक एज। ओके, सो पैलियोलिथिक एज जो कि ओल्ड स्टोन एज है, ये 2 मिलियन टू 12,000 ईयर्स अगो पाया जाता था। वेयर और उस समय रफ स्टोन टूल से सब यूज़ होता था। 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, 99% ह्यूमन हिस्ट्री में रफ टूल स्टोन ये सब यूज़ होता था। मेसोलिथिक एज जो हो गया, ये मिडिल स्टोन एज है। इस समय ये पाया जाता था 12,000 टू 10,000 ईयर्स अगो। सो दिस वॉज इट्स टाइम पीरियड इज़ 12,000 टू 10,000 ईयर्स अगो। और इस समय यूज़ होता था स्मॉल टूल्स कॉल्ड एज ए माइक्रोलिथ्स। सो मेसोलिथिक एज में स्मॉल टूल्स यूज़ होता था, जिसको हम लोग जानते हैं माइक्रोलिथ्स के नाम से। और पैलियोलिथिक एज के समय रफ स्टोन टूल्स यूज़ होता था। 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। और ये ओल्ड स्टोन एज का पीरियड है, टाइम पीरियड है। सो पैलियोलिथिक एज इज़ एन टाइम पीरियड ऑफ ओल्ड स्टोन एज। मेसोलिथिक एज इज़ टाइम पीरियड ऑफ मिडिल स्टोन एज, और इसमें माइक्रोलिथ्स स्टोन यूज़ होता था। मेसोलिथिक ये मिडिल है, इसलिए इसमें माइक्रोलिथ भी यूज़ होता था। और तीसरा हो गया नियोलिथिक एज। तो नियोलिथिक एज में पीपल फार्म्ड एंड हर्डेड, लिव्ड नियर विलेज। चैकोलिथिक एज में कॉपर स्टोन यूज़ होता था, और इस समय पीपल स्टार्टेड यूजिंग कॉपर टूल्स अलॉन्ग विथ स्टोन। कॉपर टूल्स को यूज़ करना शुरू करने लगे थे स्टोन के साथ। तो पैलियोलिथिक एज सबसे पुराना ओल्ड स्टोन एज टाइम पीरियड है। इस समय रफ स्टोन टूल से यूज़ होता था। मेसोलिथिक एज जो कि मिडिल स्टोन एज टाइम पीरियड है, इस समय स्मॉल टूल्स यूज़ होता था एज माइक्रोलिथ के नाम से जानता है मेसोलिथिक एज। और नियोलिथिक एज है जो कि न्यू स्टोन एज टाइम पीरियड है। इस समय पीपल फार्म्ड एंड हर्डेड एंड लिव्ड नियर विलेजेस। नियोलिथिक एज में पीपल फार्म करते थे, हर्ट करते थे, और विलेज ये सब के किनारे रहते थे। तो ये नया स्टोन एज पीरियड है, न्यू स्टोन एज पीरियड टाइम है। सो पीपल फार्म्ड, हर्ड एंड लिव्ड नियर विलेजेस। और चाकोलिथिक एज में ये कॉपर स्टोन एज का टाइम पीरियड है। सो चाकोलिथिक एज इज़ एन कॉपर स्टोन एज टाइम पीरियड। इस समय पीपल स्टार्टेड यूजिंग कॉपर टूल्स अलॉन्ग विथ स्टोन्स। तो इस समय लोग यूज़ करते थे कॉपर टूल्स का, स्टोन के साथ कॉपर टूल्स को यूज़ करते थे। सो पैलियोलिथिक वॉज वेरी ओल्डेस्ट टाइम पीरियड ऑफ अ स्टोन एज, रफ स्टोन यूज़ होता था। मेसोलिथिक इज मिडिल स्टोन एज टाइम पीरियड, माइक्रोलिथ्स इसमें यूज़ होता था, माइक्रोलिथ स्टोन। और नियोलिथिक में न्यू स्टोन एज यहाँ इस टाइम पीरियड से शुरू हो गया था, नया यानी नया आविष्कार है सब। न्यू स्टोन एज टाइम पीरियड शुरू हो गया था, तो इस समय फार्मिंग, हर्ट्स, लिव नियर विलेज, परमानेंट सेटलमेंट ये सब शुरू हो गया था। चाकोलिथिक एज में कॉपर स्टोन एज यूज़ होता था। पीपल स्टार्टेड यूजिंग कॉपर टूल्स अलॉन्ग विथ स्टोन। कॉपर टूल्स को लोग ज़्यादातर यूज़ करने लगे थे इस टाइम पीरियड में। सो अब आते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ इज़ एन प्रेजेंट डे ऑफ पाकिस्तान which is known as Pakistan, near Bolenbas. It's then one of the earliest farming village. ये सबसे पहला फार्मिंग का विलेज है around 7,000 BC. So people grew wheat, barley and raised ships and goats. मेहरगढ़ में लोग सबसे पहले वीट बार्ले उगाना शुरू किए थे, और रेस किए थे सबसे पहले क्या, ऑफकोर्स डॉग को पालना शुरू किए थे। देन वो बाकी अदर एनिमल्स पाले, लेकिन सबसे पहले उनका मेजर क्रॉप था वीट बार्ले। एंड देन रेस्ड शिप्स एंड गोट्स। दे लिव्ड
in so they lived in square of rectangle houses. एक स्क्वायर या रेक्टेंगल हाउस के शेप में वो रहते थे. आर्कोलॉजिस्ट फाउंड चार्ड ग्रेन्स एंड एनिमल बोन्स पिट्स हियर क्राफ्ट्स. और उनका क्राफ्ट के तौर पर आर्कोलॉजिस्ट पाए चार्ड ग्रेन्स, एनिमल बोन्स एंड बिट्स एज क्राफ्ट. एविडेंस ऑफ बीड्स, शेल्स, ornaments, terracotta figures indicates the emergence of a specialized crafted person. Trade. So link with a distance reason as बोलान पास ट्रेड रूट. और ये जो मेरे घर है इस समय कोई ट्रांसपोर्टेशन ये सब भी यूज़ नहीं होता था. ये बोलन पास ट्रेड रूट के से जुड़ा हुआ था. मेरे घर यानी पाकिस्तान बोलन पास ट्रेड रूट से जुड़ा हुआ था. इस समय कोई भी कार्ट्स ये सब नहीं यूज़ होता था, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन ये सब नहीं यूज़ होता था. इसलिए एनिमल्स एज कार्ट का यूज़ किया जाता है. एनिमल्स को कार्ट की तरह यूज़ किया जाता था. सो गुड्स वर कैरिड ऑन बैक ऑफ एनिमल्स और बाय द पीपल. यानी कैटल ये सब के ज़रिए गुड्स को कैरी किया जाता था लोगों के ज़रिए. ये हो गया मेरे घर, आप देख सकते हैं. तो बस इतना जान लो दाउचली हेदिंग में कि ये कहाँ लोकेट होता है. एज इट्स लोकेटेड नियर हिली एरिया ऑफ ब्रह्मपुत्र वैली जो कि चाइना एंड म्यांमार में है. चाइना और म्यांमार से जुड़ा हुआ जो ब्रह्मपुत्र वैली है उसी एरिया में लोकेट होता है दाउचली हेदिंग. और कैटल हुयुक जो है कैटल हुयुक ये लोकेट होता है टर्की में. मतलब ये टर्की के नाम से इसको जाना जाता है. और दाउचली हेडिंग जो है इसको जाना जाता है चाइना म्यांमार के नाम. चाइना एंड म्यांमार के जो रास्ते में आता है उसके नाम पर पड़ा है दाउचली हेडिंग. और टर्की जो है इसका नाम था पहले कैटल हुयुक. तो कैटल हुयुक जो है इसका पुराना कैटल हुयुक जो है ये ओल्डेस्ट नेम है तुर्की का. सो अमेज़र और ये लोकेट होता है न्यूलिथिक साइट पर. जो आज तुर्की है उसके न्यूलिथिक साइट पर लोकेट होता है कैटल हुयुक. सो अदर अर्ली साइट वैसे ही बाकी साइट हो गए जहाँ से आर्कोलॉजिस्ट एविडेंस पाएँ जैसे कि बुरज़ाहोम, दाउचली हेदिंग इन असम एंड मणिपुर, त्रिपुरा, गारो हिल्स. ये सब साइट्स पे से भी काफ़ी एविडेंस पाए. स्टोरिंग एंड डेली लाइफ. पीपल स्टोर grains for food seeds. They cook food inside and outside huts depending on weather. They made different types of earthen pots and for storing and decoration. Tribes. अब ट्राइब्स के बारे में पढ़ते हैं. So it consists of a related families living together in small village for 2 or 3 generations. ऑक्यूपेशन इनका हो गया हंटिंग एंड गैदरिंग, फार्मिंग, हर्डिंग, फिशिंग. यानी इनका ऑक्यूपेशन हो गया इंगेज इन हंटिंग, गैदरिंग, फार्मिंग, हर्डिंग, फिशिंग. वुमेन हैंडल मोस्ट फार्म वर्क लाइक सोइंग, हार्वेस्टिंग, ग्राइंडिंग. जो वुमेन होती है ये हैंडल करती है मोस्ट ऑफ द वर्क जैसे कि सो करना, हार्वेस्ट करना, ग्राइंड करना. सो मेन मैनेज हर्ड्स और वही मैन मैनेज करता है हर्ड. चिल्ड्रेन गार्ड क्रॉप्स एंड स्मॉल फ्लॉक्स. और वहीं चाइल्ड ये सब गार्ड करता है क्रॉप, स्मॉल फ्लॉक से सबको. मैन मैनेज करता है हर्ड को और वुमेन हैंडल करती है मोस्ट ऑफ द फार्म फील्ड, सो करती है, हार्वेस्ट करती है, ग्राइंड करती है. So both sex, male and female, make pots, basket, tools, huts, join in music, dance and decoration. सब चीज़ में ये लोग पार्टिसिपेट करते थे. ये ऑफ कोर्स हो गया ट्राइब. देख रहे हो कैसे दिख रहा है. इसी तरह से वो लोग पहनते थे ज्वेलरी, यानी हैंडमेड ज्वेलरी पहनते थे. बिट्स जो कि बना रहता था, बिट्स, वुड्स, स्टोन, ये सब चीज़ से जो बना रहता था उनका.
Jude. So, leadership. Leaders may be experienced leader, warriors, and priests. Early women were respected for wisdom. Culture belief इनका है कि have distinctive language, songs, stories, arts, local deities, social system, land, water, forest are shared tribal property. Society shows equality, no rich poor divide. So it emphasizes collecting ownership. Question: why did early human move? Because due to food, water, animals were not available in one place for the long period of time. So they had to move from one place to another as animal move from a place to place in search of food. So with that, uh, the nomads also used to move. Even also due to the seasonal change of the weather condition, they move. सो बिगेस्ट एक्सीडेंटल डिस्कवरी वॉज फायर. जो सबसे बड़ा एक्सीडेंटल डिस्कवरी था वो था फायर. एंड देन अदर एक्सीडेंटल डिस्कवरी वॉज फार्मिंग. और फार्मिंग है ना, लेकिन वो लिटिल बिट, बिगेस्ट नहीं है, लिटिल बिट डिस्कवरी है. लेकिन बिगेस्ट एक्सीडेंटल डिस्कवरी था फायर. ओके. एंड देन अदर काइंड ऑफ डिस्कवरी हो गया विल मेकिंग बाय स्टोन्स और वुड्स and farming to grow crops, numerous of crops, make the pots, and weapons. ये सब एक डिस्कवरी है लेकिन उतना बड़ा नहीं. सो एज व्हेन कॉपर टूल्स वॉज स्टार्टेड. यानी कौन से एज में कॉपर टूल शुरू हुआ था बनाना? यानी चाकोलिथिक एज में. कॉपर स्टोन एज जिसको जाना जाता है, कॉपर स्टोन एज के नाम से इसको जाना जाता है. सो चाकोलिथिक एज जो है विच इज़ ऑल्सो नोन एज कॉपर स्टोन एज, इस समय कॉपर टूल्स शुरू हुआ था बनाने के लिए. सो व्हेन वॉज फायर डिस्कवर्ड. यानी फायर कब डिस्कवर्ड हुआ था सबसे पहले? द यूज़ ऑफ फ्लिंट्स टू स्टार्ट अ फायर मे हैव अकर्ड 400,000 years ago, but concrete evidence only comes from as recently as 40,000 years ago. यानी जो फायर का जो सच्चा आविष्कार हुआ था, हल्का सा फ्लिंट ऑफ फायर आना, कन्वर्ट होना, तो वो 4 लाख साल पहले शुरू हुआ था. लेकिन जो कॉन्क्रीट एविडेंस है जो हम पाए कि फायर कब आया था, उसके हिसाब से 40,000 साल पहले डिस्कवर हुआ था फायर. सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फार्मिंग? फार्मिंग का टाइप्स हो गया डेयरी फार्मिंग, कॉमर्शियल फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, कॉमर्शियल मिक्स्ड फार्मिंग. मेहरघर फेमस फॉर. सो मेहरघर जो है जिसको प्रेजेंट डे पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, इस probably the earliest known center of agriculture in South Asia. इसको ज़्यादातर जाना जाता था एग्रीकल्चर पर्पस के लिए. साउथ एशिया में एग्रीकल्चर पर्पस के लिए मेहरघर को जाना जाता था. एंड इट्स द ओल्डेस्ट known example of lost wax technique which comes from 6,000 years old wheel shape. यानी जो ओल्डेस्ट नोन एग्जाम्पल है लॉस्ट वैक्स टेक्निक का, उस टेक्निक से आया है. कम्स फ्रॉम 6,000 years of old wheel shaped copper amulet found at मेहरघर. मेहरघर ज़्यादातर जाना जाता था ऑफकोर्स एग्रीकल्चर पर्पस के लिए साउथ एशिया में. और ये ओल्डेस्ट नोन एग्ज़ाम्पल है, ये एरिया ओल्डेस्ट नोन एग्ज़ाम्पल है फॉर लॉस्ट वैक्स टेक्निक के लिए, जो कि ओल्ड व्हील शेप्ड के लिए काम करता है. सो डोमेस्टिकेशन मीन्स ग्रोइंग प्लांट्स एंड लुकिंग आफ्टर एनिमल्स दैट आर यूजफुल टू ह्यूमन्स.
यानी ग्रो करना प्लांट्स और लुक करना एनिमल्स को, चूँकि यूज़फुल होता है ह्यूमंस के लिए। सो हम लोग, आप ये देख सकते हो, इमेजेस से भी आप काफ़ी चीज़ समझ सकते हो, जान लोगे कैसे जा रहे हैं, इनका पेंटिंग, इनका वेपन्स, इनका सेटलमेंट, food, activities, all these things. So thank you. It was all about my class. I hope you do like it.